Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Okay, so first you require to start MongoDB CLI first for the query execution. So go to MongoDB CLI or shell, you can say, and go to up to Bean directory, and then click on Mongo SH application. You will get this ID. Okay, now you require to connect with the MongoDB Compass. Okay, and whatever the connection string is there, that you require to execute here. Okay, so to get the shell. So yeah, what we will do now, we will open MongoDB Compass. So this is my MongoDB Compass. If you have already connection string with you, don't require to open this. जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है कि this is my connection string. So because one cluster you will get free in the MongoDB. So in one cluster you can create as many as database you want, and under one database as many as collection you want. Okay, so that connection string I am having, so I am just wasting that and I am getting this at last. Okay, otherwise what you require to do, you connect here or you go to MongoDB Atlas and get the connection string. So that is what the procedure, but we required connection string to connect with the you can say cluster. Okay, so cluster is what, now you know, group of similar objects, a group of, you can say, database, that is the cluster you are having. Okay, or similar object, yes, we are having different users, a different IP address you can connect with. So there are so many things, but the main is collection of databases we are having with the cluster, and it is nothing but a you can say cloud storage you are getting to store our database. Okay, so that is the cluster, which is one cluster is free in the MongoDB. But if you want to create more than one cluster, then you require to pay. Okay, now under this one cluster we have already created a database, that is my first database is the default database we connect with. But if you want to see all the databases, then the command is show dbs. So this is the command, these are the databases I have created. A few database I have created, and other database I have loaded as a sample database. So that is also you can do, as we have seen in the previous lecture, as many as database you can create over here. Now under that database I require to create a table. Okay, so कलेक्शन बोलते हैं हम यहाँ पे टेबल को. ठीक है, तो जितने कलेक्शन आपको चाहिए उतने कलेक्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अंडर वन डीबी. नाउ टू यूज एनी डीबी, देर आर नंबर ऑफ डीबीज, लाइक 10-15 यहाँ पे है हमारे पास. उसमें से मुझे कोई एक अगर यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, यूज लेट्स से टेस्ट डीबी को मुझे यूज करना है. तो use testdb is the command to use this database, so that now I am able to use each and every collection under this database. Okay, so switch my shell switch to this particular database, and now I am able to access all the collections, or you can say table, under this database. Now I want to see how many tables are there. There are two commands, tables also you can use, so these are the tables, or you can use show collections. So both the outputs are same. Either you can use show tables or show collection. In both the cases, we can see the list of tables or collection. You can see. Okay. Now under this table, we are having a number of rows. Now what terminology we are using in MongoDB for the rows? Yes, anyone? I am talking about the rows, और यू कैन से टप्पल. टप्पल के लिए हम MongoDB में क्या बोलते हैं, MongoDB में ईच एंड एवरी डेटा वी आर स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ yes, anyone? Very good, Shefullah. So in the form of documents. Okay, so each and every row is one separate document with a separate unique ID. Just like in the SQL, we are having a row ID. Here we are having underscore ID is the field through which we can identify each and every document separately.
Okay, so here we are having documents. There is no fixed structure. Okay, there is no command to see the structure actually. Okay, because there is no fixed structure, there is no nothing like this particular database under this collection is there, and this collection is having this many field. It's not like that. It may be possible sometimes you are adding 5 field, sometimes you are adding 10 field, or sometimes there is only one field. So there is no, you can say as such, strict or strongly typed object over here. This is you can say very weak object जहाँ पे आप कोई भी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं. Apart from that, one of the advantage of this type of you can say database is, or you can say unstructured database storage is that here, if I don't have any database, but suppose I am using that database, then also that database will be created. Okay, now suppose in this particular collection, if I can see show dbs. So these are the databases. Okay, now suppose I want to create one database. Let's say I want a college database. I want to use college database, so use college. Okay, so now it will switch to college. It will not give you error that this particular database is not exist. That database will be created for you. Okay, so if it is not exist, it will be automatically created. But if you see show dbs, is there any database is there in the list? No. Why? Because there is no object under this database. You require to create some tables, or you can say collection under this, and then only you can say that okay, then you will get the list of that particular database in this list. Okay, तो अभी हम देखेंगे one by one how we can create a collection. Okay, so currently we are in the database college, which is automatically created as and when we have given this command use college. इतना clear हुआ सबको? So it's like you don't required beforehand के college database होना चाहिए. अगर आप उसको use कर रहे हो, इसका मतलब वो automatic create हो जाएगा. The same with collection also. अगर table का use कर रहे हैं, इसका मतलब automatic table create हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने सिर्फ टेबल में डेटा इंसर्ट करना चालू कर दिया तो भी डेटाबेस क्रिएट, तो भी टेबल क्रिएट हो जाएगा. आपके पास टेबल है नहीं, पर आपने टेबल में क्या कर दिया, डेटा इंसर्ट करना शुरू कर दिया, तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? हाँ, डेटाबेस और इसका फंडा क्लियर हुआ सबका? ठीक है, तो हमने देखा यूज कमांड, देन वी हैव सीन शो कमांड. Now we will see how to create collection. Okay, so now if you want to create a collection, okay, so there are the first one way you can create collection with the create collection command. Okay, तो यहाँ पे create collection command सबको दिख रहा है. So db dot create collection inventory, तो inventory command जो है वो यहाँ पे create inventory collection जो है वो यहाँ पे create हो जाएगा. ठीक है, so ये create हो गया. Now we can see show dbs. Yes, college is there. Why? Because there is one object is there in the database. Earlier यहाँ पे हमें college नहीं दिख रहा था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉलेज के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था. पर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मिला है. एक हमने टेबल अंदर क्रिएट किया है, इन्वेंट्री कलेक्शन, एंड दैट्स व्हाई द कॉलेज इज देयर इन द list of database. Okay, now we want to see the collection. So in this command after this command we are getting one table, that is, or one collection, that is inventory. So this way you can create collection. Currently there is no row in the collection or no document in the collection, you can see. Okay, but अगर मुझे इस तरीके से क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं. एक टेबल है, कलेक्शन का नाम है टेस्ट टेबल, इंसर्ट वन, मतलब एक ही रो क्रिएट हो रहा है अभी, और एक ही डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे. डॉक्यूमेंट के फील्ड का नाम है x और उसके वैल्यू का नाम है 1. इट मीन्स देयर इज नो कलेक्शन अप टिल नाउ. कोई भी टेबल अभी है नहीं,
पर फिर भी उस टेबल के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट और एक रो ऐड कर रहे हैं, वो रो में सिर्फ एक ही फील्ड है, एक टेबल में एक ही फील्ड है और जिसका नाम है x और इसका वैल्यू है 1। क्लियर हुआ? दैट टेबल इज करंटली नॉट देयर इन द डेटाबेस। ओके, अगर आप इसको भी रन करते हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने रन कर दिया, सी दिस, as and when you run this there is one object created with object id. Okay, so this one table will be created. Now show tables. Now we are having two tables, test table, so there is no need to create any object. As and when you use that object in your query, that will be created automatically. Clear हुआ सबको? ये कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? यू जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ बिकॉज करंटली दैट पैनल इज नॉट विजिबल टू मी. Okay, so just unmute yourself and ask your question, students. So two ways we can create table. Either we use the table automatically, or either we use the table and automatically that row will be created, or वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी वजह से टेबल क्रिएट हो जाएगा, या फिर क्रिएट कलेक्शन कमांड. ओके, और that you can also give some criteria to your table. Okay, that is also possible. तो क्राइटेरिया यहाँ पे अगर कुछ भी देना है तो वो दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे db.createCollection is the real command to create any collection. Then you require to give the collection name, and then after you require to give all the parameters. That is also possible. You can do you can create collection through the given parameter also, where you require to give the required fields with the data type. Okay, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, the first parameter is validator parameter. तो validator always your MongoDB queries is based on JSON language, और इसीलिए यहाँ पे जो भी स्कीमा हम यूज करेंगे that will be always a JSON schema. So जो वैलिडेशन स्कीमा है, जो उनको सिंटैक्स और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है, वो सारा किसके बेस पे होगा? बेस्ड ऑन JSON. Then after binary representation of a JSON data type, that is BSON type is object. BSON means binary representation of a JSON data type. Okay, so that is object always. Binary JSON के अंदर जितने भी field value या key value होते हैं, it is always in the object format. Then after you require to give the required field. So here my required field is f name. So whenever you insert any data, that f name data must be there. जैसे यहाँ पे हमने insert 1 किया तो x लिखा है, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम कलेक्शन में स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट insert 1 करेंगे अगर ये क्रिएट करने के बाद, तो इट विल गिव एरर. व्हाई इट विल गिव एरर? x है, उसकी एरर नहीं है. x के बाद कहीं पे भी f नेम की वैल्यू भी होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड. ओके, and the field properties are here. The field property is what? That BSON type is string and its description must be in string and is required. Okay, so this way also you can validate your table. Okay, so if you create this particular table or collection, and if you insert data without f name, okay, then it will give error. Or if you give f name as a number value, then also it will give error. Clear everyone? Okay, so this way also you create table. Generally we create table with this particular data type, with this particular command or syntax. Okay, you can see ये जो है वो एक सिंगल टेबल है, इन्वेंट्री टेबल, और उसमें हम एक डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं. दैट डॉक्यूमेंट इज हैविंग आइटम field and value, quantity field and value, tags field and value, and size field and its value. Now here you can see this particular object is having one whole object inside. That size is having multiple values over here. ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हमने डेटा को
इंसर्ट किया. नाउ करंटली देयर इज नो टेबल लाइक इन्वेंट्री टेबल. ठीक है, अभी कोई टेबल है यहाँ पे? ठीक है, अभी कोई टेबल दिख रहा है यहाँ पे? शो टेबल्स. ओके, वन इन्वेंट्री टेबल इज देयर. ओके, तो हम इस इन्वेंट्री टेबल के अंदर ये ऐड करते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस पर्टिकुलर टेबल इज क्रिएटेड. अगर क्रिएट नहीं है, और अगर क्रिएट नहीं हुआ है अर्लियर, और वो अर्लियर टेबल के फील्ड कुछ और है, तो भी ये नया फील्ड जो है उसमें ऐड हो जाएगा. कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड हुआ है? सो db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड. okay, so this is what the select star from table. ये क्या है आपका? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल. ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या डेटा करंटली है. क्लियर हुआ सबको ये? तो इस तरीके से आप डेटा डाल सकते हो. ये सारा डेटा इन्वेंट्री का डेटा है. सपोज यू वांट मल्टीपल डॉक्यूमेंट, यू वांट टू इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट एट अ टाइम, तो यहाँ पे देखो सारा डेटा यहाँ पे इंस्टॉल हमने एक साथ 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट जो है वो इंसर्ट किया है. ठीक है, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है, तो देखो सभी के ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हुए हैं. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी, ईच एंड एवरी रो इज कंसिडर एज वन ऑब्जेक्ट, एंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज हैविंग वन आईडी. तो ये ऑब्जेक्ट आईडी उसके क्रिएट हुए हैं. ठीक है, ओके. नाउ this is another table we have created, that is product table. Product table is having this multiple fields like id, item and quantity. As we have already discussed that already id field is given by the system. Okay, तो यहाँ पे हमने देखो id field भी लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो id field भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है. insert one, sorry. ओके, तो डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट्स व्हाई शो टेबल्स में करके देखते हैं. यस, इट इज क्रिएटेड. ओके, सो db dot products dot find, this is what the select star, and here we are having id 10. Okay, so if you want to give id like one sequential id like 1 2 3 4 5, that also you can give. But if you don't have that type of id given in the टेबल इटसेल्फ, जैसे कि इन्वेंट्री में क्या हुआ था, तो इन्वेंट्री में हमारे पास देखो आईडी कैसा है, इट इज सिस्टम आईडी. ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप अपना खुद का आईडी भी दे सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज मल्टीपल डेटा वी हैव एडेड विद द table. Okay, not necessary all the time you require to give all the data. Maybe possible you don't have data of quantity and type in next. क्वांटिटी सपोज आपके पास नहीं है डेटा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, तो देखो यहाँ पे विदाउट क्वांटिटी डेटा स्टोर हुआ है, यहाँ पे भी विदाउट टाइप डेटा स्टोर हुआ है, दोनों दोनों डॉक्यूमेंट में. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट स्ट्रांगली टाइप कि आपको ऐसा स्टोर करना ही करना है. ठीक है, तो अभी तक इतना क्लियर हुआ सबको कैसे डेटा को इंसर्ट करना है. डेटा इंसर्ट करने के लिए की वैल्यू पेयर ऑलवेज, जितने भी फील्ड है उस हिसाब से. नाउ देयर आर टू ब्रैकेट्स, वन इज कर्ली ब्रैकेट एंड वन इज योर सिंपल ब्रैकेट. ओके, सिंपल ब्रैकेट इज ऑलवेज विद द मेन क्वेरी. तो मेन क्वेरी आपकी क्या है? इंसर्ट. तो इंसर्ट के साथ आपका मेन क्वेरी के साथ ये वाला ब्रैकेट आएगा. बट वेन एवर यू आर राइटिंग एनी वैल्यूज, दैट टाइम यू रिक्वायर दिस कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पहला रिकॉर्ड डाला की वैल्यू पेयर के साथ, फिर कॉमा, सेकेंड रिकॉर्ड, कॉमा, थर्ड रिकॉर्ड. whatever the values are there in the form of string, you required quotation. If it is not string and number value, then without quotation. Clear everyone? These are the only two data we are having, data type for the
क्वेरी एनालिसिस, ओके, स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? या एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, fine. So now we will give one by one we will run one by one some queries regarding this, okay? तो first query कौन सी है हमारे पास? Select all the documents inside a collection. So select all the document inside the collection, उसके लिए कौन सा होगा? कौन बताएगा? कौन सी क्वेरी होगी? 2 बार मैं लिख चुकी हूँ वो क्वेरी। इन्वेंट्री कलेक्शन का सारा डेटा देखना है तो कौन सी क्वेरी है? I want to see all the documents under inventory. Yes, anyone? Very good, Sonia. Find. And my query will always start with the db dot collection name. Okay. So db dot collection name dot find is the select star from table. Okay. So that you can use over here. That we have seen already. Then after suppose you want to give a where condition. So यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा दोनों का ही कॉम्बिनेशन लिया है कि आपको पुराना समझ में आए कि भाई डीबीएमएस में हम कैसे करते थे और अब हमें कैसे करना है, ठीक है? तो सपोज आपको हमारे पास डेटा क्या है इन्वेंट्री के अंदर? सो इन्वेंट्री फील्ड में हमने डेटा लिया है आइटम, क्वांटिटी, साइज एंड स्टेटस, ओके? एंड अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर हैविंग स्टेटस डी। तो क्या करेंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर स्टेटस इज इक्वल टू डी। बट यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? तो फाइंड फील्ड नेम कॉलन वैल्यू, ठीक है? तो ये आपको देना है यहाँ पे फाइंड फील्ड नेम कॉलन वैल्यूज। तो सपोज यहाँ पे हमें देना है db डॉट इन्वेंट्री डॉट फाइंड लेट्स से क्वांटिटी 25। तो ये क्या करेगा? सॉरी, करली ब्रैकेट। तो क्वांटिटी 25 क्या करेगा? इन्वेंट्री में जहां पे भी 25 क्वांटिटी है वो डेटा हमें मिलेगा, ठीक है? क्लियर हुआ सबको ये? नाउ सपोज आई वांट क्वांटिटी लेस देन ग्रेटर देन 25 सपोज, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ब्रैकेट डॉलर ग्रेटर देन 25। So all are greater than 25. See 25 वाला नहीं आया because 25 is also there in the list. यहाँ पे देखो ये 25 भी है पर यहाँ पे 25 नहीं आया, ठीक है? Because we required greater than 25. Let's say we do greater than 50. ठीक है? तो greater than 50 वाला 100, 175. Less than 50. तो यहाँ पे हो जाएगा $LT less than 50, ठीक है? सो देखो लेस देन 50 वाले डेटा जो भी होगा 25, 45 दिस विल कम। सपोज यू वांट काइंड ऑफ क्वेरी लाइक दिस, ठीक है? कि जहाँ पे स्टेटस जो है वो सिर्फ डी स्टेटस वाले ही यहाँ पे आने चाहिए डेटा, ठीक है? तो देखो डी स्टेटस इज इक्वल टू डी, दिस इज द डेटा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड on particular column, that column name, and if you want where condition also, then call in where condition, whatever the condition is that you require to give, okay? Now suppose you want to find inventory where status is in A and D, selection A और D का जो भी स्टेटस होगा उस हिसाब से हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइंड स्टेटस डॉलर इन इज द पैरामीटर, डॉलर इन इज द ऑपरेटर, सॉरी। सो डॉलर इन कॉलन ए कॉमा डी। सो ए कॉमा डी के अंदर के जितने भी स्टेटस है वो सारे मिलेंगे, ठीक है? तो ये आ गए ए ए डी 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 ए, क्लियर? ठीक है? नाउ where condition with two where condition with and operator, that is also possible, where status is equal to A and quantity is less than 30. So we have already seen how to write quantity less than 30, ठीक है? तो that we have already done, ठीक है? quantity colon फिर whatever the
यू कैन से रिलेशनल ऑपरेटर यू वांट टू यूज, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 30 और कॉमा करके एक दूसरा फील्ड भी चाहिए, स्टेटस इज इक्वल टू ए। जितनी भी कंडीशन चाहिए कॉमा करके लिखते जाओ, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइटम क्वांटिटी सबसे पहले तो लेस देन 30, तो एक ही क्वांटिटी है 25 एंड स्टेटस इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेस देन 50 लेते हैं, तो वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज विच आर लेस देन 50 एंड हैविंग स्टेटस ए, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है। कॉमा करके लिखा है इसलिए बोथ कंडीशन बाय डिफॉल्ट, जो कॉमा करके जितना भी लिखा है वो एंड कंडीशन है। और कंडीशन के लिए यू रिक्वायर टू यूज और ऑपरेटर। यहाँ पे जैसे लेस देन और इन ऑपरेटर यूज हुआ है, वैसे ही एक और ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड डॉलर और, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है स्टेटस ए होना चाहिए या फिर क्वांटिटी लेस देन 30, इट मीन्स we are having two condition with or operation, okay। So instead of only comma 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 before this condition you require to give or operation, so dollar और colon, और उसके बाद जितने भी आपके पास पैरामीटर है और के लिए जितनी भी कंडीशन है वो सारी यहाँ पे आएगी। समझ में आया सबको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टू यूज इन दिस, ठीक है। दिस इज और ऑपरेशन, सो आइदर ए और क्वांटिटी लेस देन 30, तो क्वांटिटी लेस देन 30 वाले ए में ही आते हैं, इसलिए वो सारे में ए ही आया, अदरवाइज ये दोनों और कंडीशन में है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ रहा है सबको, या एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? ओके, so now another query is based on like operator, ठीक है। कि भाई क्वांटिटी स्टेटस आपका ए है एंड क्वांटिटी लेस देन 30 और आइटम लाइक p percentage. Now what is the meaning of p percentage, student? What is the meaning sorry, what is the meaning of p percentage? ये क्वेरी क्या कह रहा है आपको? आइटम लाइक p percentage means you must have used this particular query in DBMS, right? So what is the meaning of this? Yes, very good Namrata, starting with P, okay। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एंड ऑपरेशन भी है और ऑपरेशन भी है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर भी है, लाइक ऑपरेटर भी है, ये सभी का हमें यूज करना है। तो हमारा मोटो क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन सा ब्रैकेट कब आएगा। तो पहले तो जो मेन क्वेरी है उसके साथ ये अपना नॉर्मल ब्रैकेट आता है, फिर जैसे ही आप कोई भी फील्ड के साथ काम करते हो तो कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट स्टेटस इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमें ए स्टेटस चाहिए, कॉमा, देन वी रिक्वायर्ड और ऑपरेशन ऑन दिस टू पर्टिकुलर कंडीशन। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के बाहर आपको क्या चाहिए, और ऑपरेशन, and for or operation we are having dollar or operator. Now here by default if you are doing only comma, it means this is and condition, there is no different operator for and. But if you are doing or operations, then you require to give or dollar or operator, so dollar or colon, and then after you require to give this, okay। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जब और ऑपरेटर्स में मल्टीपल, जहाँ पे मल्टीपल चीजें होती है उस टाइम पे आपको क्या देना है मल्टीपल में। सो विद द मेन क्वेरी वी रिक्वायर्ड ऑलवेज दिस नॉर्मल ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं,
फिर जब भी आप कोई भी फील्ड के साथ काम करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आपको क्या यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट. When you are having multiple conditions based on some operator, then you require this square bracket. मल्टीपल जहाँ पे होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट जनरली, और इन जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती है वहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है. इफ यू सी प्रॉपरली हियर वी हैव यूज इन ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया. देन आफ्टर वी हैव यूज और ऑपरेटर, देयर आल्सो वी हैव यूज्ड this square bracket, and then here we are having वापस से कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है. क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है. सो नाउ इन दिस क्वेरी व्हाट वी हैव डन, वी रिक्वायर टू गिव 3 कंडीशंस. तो पहली कंडीशन तो नॉर्मल है, स्टेटस इज इक्वल टू ए, कॉमा, दूसरी कंडीशन पर वो कैसे स्टार्ट हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में. देन सेकेंड इज हैविंग 2 कंडीशन ऑन और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर के साथ ये 2 कंडीशन, बट यहाँ पे क्वांटिटी लेस देन 30 है, इसके लिए इस तरीके से उसको करना है, ठीक है. सो दैट वे यू कैन गिव दिस कंडीशन. ओके, सो क्वांटिटी लेस देन 30 एंड और ऑपरेशन है जहाँ पे आइटम स्टार्ट विथ पी, ठीक है. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ आइटम स्टार्ट विथ पी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज पॉसिबल, ठीक है. तो वो दे सकते हो, उस केस में आपको और की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. अच्छा, ये भी एक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास सिंपल करना है, ठीक है. सो क्वांटिटी, सॉरी, आइटम स्टार्ट विथ पी एंड स्टेटस इज इक्वल टू ए, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है. अगर स्टेटस ए भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी स्टार्ट विथ ए, तो सी हमारे क्वांटिटी स्टार्ट विथ पी, सॉरी. तो यहाँ पे देखो पी से स्टार्ट होने वाली 3 क्वांटिटी, 3 डॉक्यूमेंट है, ठीक है. क्लियर हुआ सबको ये. डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यू कैन सी दिस, 100 पहले आ रहा है, 25 बाद में, ठीक है. और वहां पे ही हम -1 की जगह पे 1 कर देते हैं, तो 25 पहले आएगा, 100 बाद में, ठीक है. सो द कमांड इज व्हाट, db.inventory.find इज द कमांड लाइक सिलेक्ट स्टार, ठीक है. उसके बाद आपको सब देते हुए जाना है, ठीक है. सिलेक्ट स्टार डॉट शॉर्ट, और उसके बाद फंक्शन के अंदर किस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर शॉर्टिंग करना चाहते हो वो दिया. क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है. सो उस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हो. या एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अप टिल नाउ? Okay, now after that another is indexing. Okay, so इंडेक्सिंग हम नॉर्मली क्रिएट इंडेक्स करते हैं. वो इंडेक्स हमें कहाँ दिखने को मिलता है, अगर हम कोई भी टेबल के ऊपर इंडेक्स करते हैं, सपोज इन्वेंट्री टेबल के ऊपर या एम्प्लॉय टेबल के ऊपर इंडेक्सिंग कर दिया, लेट्स से आइटम के ऊपर ही इंडेक्सिंग कर दिया ये इन्वेंट्री टेबल के ऊपर, तो क्या हमें देखने को मिलेगा वो इंडेक्सिंग? यस, एनीवन? if we give create index command, can we see that indexing? एंड क्रिएट इंडेक्स कमांड जो है वो इंडेक्सिंग जो है वो किस लिए करता है, और व्हाई दिस क्रिएट इंडेक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्सिंग, व्हाट टाइम वी विल यूज दिस इंडेक्स? यस, एनीवन? yes, very good, for fast retrieval of data. okay, so it's not like that okay, यहाँ पे देखने के लिए आप इंडेक्सिंग कर रहे हो. ये इंडेक्सिंग जो होगा वो आपके
बिहाइंड कोड आपका जो डेटा रिट्राइवल है या आपका क्वेरी, सपोज आपने जॉइन क्वेरी लिखा हुआ है, उस टाइम पे ये सारी इंडेक्सिंग यूज होगी, सो दैट वी कैन प्रोसेस अवर डेटा फास्ट। ओके, सो उसके लिए इंडेक्सिंग है ये, ठीक है। तो ये इंडेक्स अभी हम क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर दैट, अगर हम शॉर्टिंग कर रहे हैं तो शॉर्टिंग के साथ अभी आपको कोई कंडीशन देना है, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद द फाइंड, ऑल द फाइंड मतलब फाइंड कंडीशंस यू कैन अप्लाई ओवर हियर, एंड देन डॉट शॉर्ट। क्लियर हुआ कि ये सारी कंडीशन चाहिए, और उसके बाद जो भी डेटा आता है वो क्वांटिटी के असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये सब लिखने के बाद डॉट शॉर्ट क्वांटिटी $1, क्वांटिटी $1। क्लियर? So that way we will discuss, we can list all the data based on this condition with this order। क्लियर हुआ सबको ये? तो यहाँ पे फाइंड जो है उसमें आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो इंडेक्सिंग देयर आर मल्टीपल फील्ड पे भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं और सिंगल फील्ड पे भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन, द इंडेक्सिंग विल बिकम सो मच ऑफ कॉस्टली, ठीक है। किस हिसाब से कॉस्टली हो जाता है इंडेक्सिंग? जब आपका ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होते हैं, जब भी जैसे ही कोई नया ट्रांजेक्शन होता है तो आपको वो इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है। तो वो हर बार अगर मेंटेन करते हैं इंडेक्स तो वो कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वे जिस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ज्यादा काम होता है, जनरली हमारा जो भी की वैल्यू रहता है या प्राइमरी की रहता है उसके ऊपर ही इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि उसके ऊपर ही जनरली हम लोग सारे क्वेरीज फायर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो भी फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन से फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग करना जरूरी है, ठीक है। और उसी फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग करेंगे। मल्टीपल फील्ड के ऊपर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेट्स से सपोज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डेटा अगर हमारे पास है और डिपार्टमेंट डेटा भी है, तो एम्प्लॉय प्लस डिपार्टमेंट कोड के ऊपर इंडेक्सिंग करना जरूरी है, ठीक है। सो दैट डिपार्टमेंट वाइज जितनी भी क्वेरी है उसका फास्ट एक्सेस और फास्ट डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है। सो उस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अभी एज आई टोल्ड यू, वी कैन इंडेक्स वन, वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन वन फील्ड और वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन मल्टीपल फील्ड। तो वन फील्ड पे इंडेक्सिंग करना है तो ये उसका इंडेक्स का सिंटेक्स है, db.collection_name.create index is the command। देन द फील्ड नेम, किसके ऊपर आपको इंडेक्स क्रिएट करना है और किस टाइप से असेंडिंग या डिसेंडिंग इंडेक्स करना है, ठीक है। तो कौन बताएगा ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? -1, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट हो गया है ऑन फील्ड आइटम। एज आई टोल्ड यू, दिस इज नॉट द थिंग दैट यू विल गेट द लिस्ट, बट ये आपका बिहाइंड द कोड डेटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है। यस, -1 इज फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग। यस, एनीवन? तो -1 is for descending and 1 is for ascending। Okay, yes, very good Saifullah Ravindra, ठीक है। तो दिस इज फॉर डिसेंडिंग इंडेक्स, ओके। मल्टीपल फील्ड पे करना है तो कॉमा कॉमा करके आप कितने भी फील्ड दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आइटम के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में है और क्वांटिटी के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है उस वो वाली आइटम पहले दिखेगी आपको, ठीक है। देन यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑल्सो। द डिस्क्रिप्शन इज द इंडेक्स नेम इज क्वेरी फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। तो दैट वे ऑल्सो यू कैन गिव इंडेक्स वैल्यू। सबको क्लियर हुआ इंडेक्सिंग कैसे होता है? फील्ड नेम कॉलन -1 और 1 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड कॉमा करके कितने भी फील्ड आप दे सकते हो। यू कैन गिव नेम ऑफ द इंडेक्स ऑल्सो यूजिंग द नेम कीवर्ड। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? यस, एनी क्वेश्चन? Okay, then the another query is delete query,
Okay, we have seen insert query, we have seen select query, and now this is delete query. If you want to delete any you can say document, okay, then you can delete that document using delete one delete many command. Okay, so delete one क्या होता है, तो delete one के बाद आप जो भी फील्ड का कंडीशन देंगे उसके बेस पे जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा, जो भी फर्स्ट रो मैच रो आती है वो डिलीट हो जाएगी. ठीक है, सो सपोज आई डिलीट दिस इन्वेंट्री, स्टेटस इज इक्वल टू डी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटस डी जो है वो क्या हुआ है, डिलीट हुआ है. ठीक है, अब अगर हम लोग सारे फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है, सो अच्छा डी वाला एक ही था. ठीक है, डी ए वाले, हाँ डी वाला है ना, ये रहा. ठीक है, सो जो फर्स्ट अकरेंस आता है वही डिलीट हुआ है, दूसरा नहीं हुआ. ठीक है, क्लियर हुआ. पर अगर आपको सारे ही डिलीट करने हैं, ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिलीट मैनी स्टेटस इज इक्वल टू ए. ठीक है, ये कमांड देना है. तो क्या होगा फिर, उससे सारे ही जो है वो डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग ओनली टू डेटा विच इज हैविंग स्टेटस डी एंड दिस इज नॉट हैविंग एनी स्टेटस. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, so that way you can delete row. Now suppose you want to delete all the data whatever is there, so don't give any command, only give delete many. ठीक है, सब कुछ ही डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा अभी. ठीक है, so this is just like select delete from table. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो ट्रंकेट हो गया, डेटा अभी कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, सो दैट वे यू कैन डिलीट योर होल टेबल. ठीक है, अगर आप कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, दिस इज जस्ट लाइक योर फाइंड कंडीशन के क्वांटिटी लेस देन है, तो उसको डिलीट करो. तो ये जो फाइंड के अंदर जितनी भी आपने दिया है वो सब भी कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? Thank you, everyone.